good day to all of you. Then we know that already we was discussed KCL and KVL law. KCL and KVL law का statement तो easy है that the statement of KCL is Kirchhoff current law. The incoming current is equal to the outgoing current. Okay, but अप्लाई करने में थोड़ा सा मतलब दोनों इस KCL को नहीं KVL को अप्लाई करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहती है. वी हैव टू take the seriously that what is the rule of the KVL. Okay, so first of all we are taking the one example of the KCL, then you can understand well how can we apply the KCL and KVL rule in the circuit. Suppose we are taking a junction, OS junction, then two current is coming and two current is outgoing. So we are taking the incoming current equal to outgoing current. You can see in the circuit diagram the incoming current is 5 ampere and 2 ampere is the incoming current, and I and 3 ampere is outgoing current. So we can take the formula by the KCL rule. 5 ampere plus 3 ampere is equal to I, outgoing है I plus 3 ampere. So with the help of ये एक्चुअली में इक्वेशन बनना बिल्कुल सही बनना चाहिए. अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो फिर आंसर गलत आएगा. So after that we can calculate the value of I, that means missing current. तो इस फोर्थ वायर में कितना करंट फ्लो रहा है we can calculate. Then you can see ना 5 to 7 को ट्रांसफ़र किया तो I is equal to 7 minus 3, that is 4 ampere. Okay, then with the help of this formula we can calculate. So you can take a more वेरिएबल वाले कुछ पॉइंट्स हैं. सपोज P is a junction, then I1 is current incoming and I2 and IG is outgoing. So in this condition how can we apply the junction rule? Then at P point incoming current I1 is equal to outgoing current is I2 plus IG. It is the junction rule. Okay, then next one, last one, this D point. Suppose यहाँ ले रहे हैं I3 is incoming current, IG is also incoming current and I4 is outgoing current. So we can take that at the point of D point I3 plus IG equal to I4. It is the equation of this point. Already we have used the KCL junction rule. Then second rule is KVL, Kirchhoff voltage law. Means it is we have to take this serious about how can we apply this rule. So you know that what is the rule? Potential difference is 0 at one point and the one terminal potential difference is 0. So we have to discuss about the rules. You have to complete the 1 2 3 4 rules. You have to remember the 4 rules. Otherwise रूल्स के अगेंस्ट काम करेंगे या रूल को भूल गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ठीक है ना. रूल्स हर बुक में थोड़े थोड़े अलग अलग हैं. हो सकता है कि हम क्लॉक वाइज ले रहे हैं और वहाँ एंटी क्लॉक वाइज दिए हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है. यू हैव टू फॉलो ऑफ अ वन बुक रूल्स. ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट रूल फर्स्ट बुक का ले लिया, सेकेंड रूल किसी अनदर बुक का ले लिया. नहीं. बट यू हैव टू टेक द ऑल रूल्स इन अ बुक और इन अ स्टडी मटेरियल, किसी भी स्टडी मटेरियल की. ओके, सो वी हैव समराइज द रूल्स. नंबर 1, सी हाउ कैन बी टेक इन सर्किट में. देखिए कॉम्बिनेशन में सर्किट में IR रेजिस्टेंस भी होता है एंड फ्लो ऑफ करंट और EMF EV है पोटेंशियल, मतलब 15 वोल्ट एंड वट जो भी ये गिवन है. सो वी कैन टेक व्हेन वी कैन टेक पॉजिटिव और व्हेन वी कैन टेक नेगेटिव. सपोज AB, इसमें पाथ का बहुत ज़्यादा रूल है. पाथ मतलब जैसे A to B, ये पाथ हुआ. ये क्या हुआ? पाथ. A to B, B to C, C to D, ये पाथ होते हैं सब. सो सपोज यू कैन सी इन फर्स्ट इन A to B, here flow of current I and resistance R. पाथ है AB. Okay, the flow of current and path direction is same. So we can take the product of IR, potential difference V is equal to IR, product of potential difference I or R is minus IR. Okay, we have to take minus IR and otherwise we have to take positive. अगर दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है सो वी हैव टू टेक पाथ डायरेक्शन. ये हुआ AB हो गया, करंट फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन ये है
B to A, so we have to take पॉजिटिव IR, ठीक है। ये तो हो गया एक IR को पॉजिटिव और नेगेटिव लेने के लिए। थर्ड है कि बैटरी है, बैटरी अब है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, E होगा, वैल्यू होगी। सो यू हैव टू ऑब्जर्व देन पाथ, जैसे AB है, AB का पाथ, ठीक है। अब AB का पाथ है, अब इस कंडीशन में ये करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब ये करंट नहीं, पाथ यहाँ पर, पाथ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव होता है हाई, नेगेटिव होता है लोएस्ट, हाई टू लो। अब हाई टू लो जा रहा है तो मतलब नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी हैव टू टेक -E या -V। जो 10 वोल्ट होगा तो हम -10 यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड। हाई टू लो देन वी हैव टू टेक माइनस हाई टू लो, क्योंकि हाई टू लो जा रहा है, इसको बोलते हैं बड़े वाले को हाई और छोटे वाले को लो। जस्ट अपोजिट, अगर पाथ AB to B है, मतलब लो से हाई में जा रहा है, पाथ कैसा, लो से हाई, तो वी हैव टू टेक ऑलवेज पॉजिटिव E या +10। तो ये रूल है, इस रूल्स के को भूल गए या दूसरे अपने एक जैसे रूल होना चाहिए, वो आप अगर क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ये अलग मतलब डजन मैटर है, बस यू हैव टू फॉलो द दिस रूल। इफ़ यू विल टेक द दिस रूल, अदरवाइज यू रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक लूप लिया है हमने ABCD, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल क्लोज लूप है। अब ABCD सबसे पहले हमने लूप डिसाइड करना है, ABCD क्लॉकवाइज ले लिया ABCD, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, पर रूल वो फोर है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही लगेगा ABCD, ठीक है। तो ABCD रूल है। फिर करंट का डायरेक्शन डिसाइड किया, यहाँ से पॉजिटिव करंट निकला, यहाँ से I1 गया, I1 नहीं, केवल I और यहाँ पर I आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ कैन बी अप्लाई, तो वी कैन अप्लाई द KVL del V इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने V लो सबसे पहले, V के डायरेक्शन ऑफ V। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ V हाई से, सॉरी ये लिख दिया, इसमें ये लो टू हाई, ठीक है। जो अपना पाथ है वो कैसा है, A to B, B to C, C to D, D to A। D to A मतलब लो से हाई, लो से हाई मतलब +10 आएगा, +10, ओके। देन आफ्टर दैट जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनके साथ पोटेंशियल लो। I और 2I मतलब 2I हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सो वी हैव टू टेक -2I। ये भी सेम डायरेक्शन है, वी हैव टू टेक -3I इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनना बहुत सही बनना चाहिए बस, बाकी तो सब ऐसे और कुछ नहीं है, ओके। देन आफ्टर दैट 10 और 2 और 3 को हमने कंबाइन किया, 5 10 को साइड कर दिया ट्रांसफर, तो 5 to 10, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर, ओके। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया है द ABCD, जिसमें 2 हमने बैटरी को यूज़ किया है, बट वी हैव टू टेक ऑल्सो, देन 10 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, तो वी हैव टू टेक ऑलवेज टाइम द 10 वोल्ट टू 4 वोल्ट, ओके। डायरेक्शन जो लेते हैं, तो 10 वोल्ट से 4 वोल्ट की हो, ये यहाँ से I करंट आया, ये भी I करंट, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट जिस ABCD, वी आर टेकिंग द लूप ABCDA, ये ले अप्लाई KVL किरचॉफ वोल्टेज del V इक्वल टू 0। सो V दोनों हैं, दो हैं। अब यहाँ से देखिए अपन ने ABCD, ये देखिए ये डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ये, क्योंकि हाई टू लो। अब इसमें देखिए छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। हमारा जो लूप है वो इस साइड आ रहा है, किस साइड आ रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये जा रहा है अपना, अब डायरेक्शन ही देखना है इसमें, तो ये हाई है, हाई और ये लो। अगर हाई से लो जा रहा है तो नेगेटिव पोटेंशियल, ये -10 लेंगे, तो वी हैव टू टेक -10V प्लस, इसमें देखिए इसमें करंट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा लूप ये कैसा है, AB, करंट नहीं देखते हैं, लूप AB यहाँ से आ रहा है, तो ऐसे लूप है, ये लूप है ना, लूप का डायरेक्शन ऐसे है, तो मतलब हाई, लो से हाई तो +4, ओके। देन सिमिलरली ये 1 और 2 और ये 1 ले लीजिए, देन 1I की वैल्यू वी हैव टू टेक अपोजिट है, देन पॉजिटिव 1I पॉजिटिव, देन 2I इट इज़ ऑल्सो अपोजिट, देन +2I,
इट इज़ ऑल्सो अपोजिट देन प्लस आई, इट इज़ ऑल्सो अपोजिट देन प्लस 2i इक्वल टू 0। तो जितने भी सब i को ऐड कर लिया 6i और इसको माइनस किया ना 6, तो i इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब ईच रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को। अगर अप्लाई और भी कोई एग्जांपल करके देखिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।